Today we are starting with solutions. What are solutions? Solutions are made up of solute and solvent. Together they are making a solution. If there are two components, one solute and one solvent in a solution, that is known as a binary solution. There can be more than two components also in a solution, but if only two components are there, that solution is known as binary solution. And if water is a solvent, then that solution is known as aquasol. That is known as aquasol or aqueous solution. That is known as aqueous solution. Now to understand the solution, I'm taking this example. Suppose we have water here in this. There is water in a beaker. And to this water, we are adding a salt. We are adding a salt to this water. This is salt. Now salt will mix up in the water, and after this what we will get is a solution of salt in water, which is a uniform solution because salt will dissolve in the water uniformly. So uniform solution will form. This component that we are adding is called solute. In which we are adding solute, that is called a solvent. So what is solute actually? Mainly we say that that component of solution which is in a lesser amount is solute, which is in more amount, that is a solvent. So this is how we get the solution, by mixing the solute and the solvent, and they mix to form a uniform solution. From this we can define a solution. A solution is a homogeneous means uniform mixing is there. Homogeneous mixture of, and solutions are mixtures, two or more pure substances. Pure substances means elements or compounds. When we mix these, we get a homogeneous mixture which is known as a solution. Next we have types of solutions. Solutions are of 9 types. There are 9 types of solutions. These 9 types of solutions are based on the physical state of solute and solvent. Solute, solvent, name of solution, and one example we will take here. Now what are these 9 types of solutions? First, if we take the solute in a gaseous state and solvent also in a gaseous state, that's a physical state of the two. Name of the solution is gas in gas solution. An example is air, that is mixture of oxygen and nitrogen, that is air. Next we have liquid solute and gaseous solvent. This is known as liquid in gas solution. Example is humidity in air. Humidity in air. Third is solid here, and here we have a gas. Then we will take gas and liquid. Next is liquid, solid. This is liquid, gas, solid, and solid. And names are also like this only. Solid in gas. Then we have gas in liquid. Next is liquid in liquid, solid in liquid,
gas in solid. The name of this is liquid in solid. Next is solid in solid solution. Next we have examples here. Example of solid in gas is iodine vapors in air. Iodine vapors in air. Next we have gas in liquid. Gas in liquid is aerated drinks, soft drinks. Liquid in liquid is like alcohol in water. Solid in liquid is like a salt, NaCl in water or sugar in water. This is gas in solid like hydrogen adsorbs on palladium. Next is liquid in solid, hydrated salts in salt, there is some water of crystallization, and solid in solid example is alloys. In the first three, the solvent is gas, so these are also called gaseous solutions. In fourth, fifth and sixth type, solvent is liquid, so these are also called liquid solutions. And here, solvent is solid, so these are also known as solid solutions. After knowing what is solution and the type of solutions, our next topic is concentration of solutions. Concentration of solution means what? If we take, like, for example, 100 ml water we have taken. And to this we are adding a salt. Suppose salt हमने लिया है 10 grams. And now, second time, again take 100 ml water, same amount. But now this time we are adding, let's say 20 gram salt. The two solutions are same, salt in water, but how the two are different from each other? In amount of solute. इसमें amount कम है, इसमें amount क्या है? ज़्यादा है. If amount of solute will be more, then that solution is more concentrated solution. And this one is dilute solution. So solutions are of salt and water, लेकिन how they are different from each other? In their concentrations they are different. एक dilute है और दूसरा क्या है हमारा? Concentrated है और इसकी amount को हम vary भी कर सकते हैं. So whenever we are dealing with solutions, तो हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए, what is concentration. But there are different ways to express concentration of solutions. So ways to express concentrations of solutions. First is percentage by mass या percentage by weight. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं W by W. What is the meaning of percentage by mass? Percentage means total चीज़ हमने 100 लेनी है and it is by mass, that means total हमारे पास solution 100 ग्राम होना चाहिए. In 100 gram of solution, how much is the mass of solute? It is the mass of solute in 100 gram of solution. Both things we are taking here in a mass only, in grams only. So percentage of solute, for example, we are taking is equal to, किसके इक्वल होगा? परसेंटेज है तो mass of solute upon mass of solution into 100. So this is percentage by mass. Second is molarity. Molarity is written as mole per liter. Now what is molarity? Molarity term has mole word in it. तो mole से हम इसको define करेंगे. इसका मतलब है
it is the moles of solute in 1000 ml सोल्यूशन. 1000 ml टोटल सोल्यूशन है, उसमें कितने मोल्स हमारे किसके हैं, सोल्यूट के. डैट इज नोन एज मोलैरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल परसेंटेज बाय मास और मोलैरिटी दोनों एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं इससे. वी आर टेकिंग वाटर हियर. वाटर हमने लिया 100 ml. कितना वाटर लिया हमने, 100 ml वाटर हमने लिया. यहाँ पे भी सपोज कर लो कितना लिया हमने, 100 ml हमने वाटर लिया. तो ये हमारा क्या है, सॉल्वेंट. दिस इज सॉल्वेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ सॉल्वेंट. अब इसमें मैंने 10 ग्राम सॉल्ट डाला NaCl. ये फर्स्ट केस पहले देखो, ये हमारा सोल्यूट है. 10 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्वेंट. बताओ परसेंटेज बाय मास सोल्यूट का कितना होएगा. तो सोल्यूट का परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, सोल्यूट का मास 10 अपॉन किसका चाहिए, सोल्यूशन का चाहिए. सॉल्वेंट 100 है, इसको ml की जहाँ पे मैं ग्राम कर रही हूँ क्योंकि हमने मास में लेना है. तो 100 ग्राम हमारे पास सॉल्वेंट है, लेकिन हमने जो परसेंटेज निकालनी है वो सोल्यूशन में निकालनी है. तो सोल्यूशन कितना हुआ, 10 + 100 110. परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो किस में से कैलकुलेट करेंगे, 100 में से. तो पर्सनली याद रखना, हम सोल्यूशन में कैलकुलेट करते हैं ना कि सॉल्वेंट में करते हैं. तो 10 ग्राम NaCl को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है जब हम ये सोल्यूशन बनाते हैं. तो इसके परसेंटेज, इसका मास अपॉन सोल्यूशन का मास होना चाहिए, जो कितना आएगा, सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट 110. अब देखो यहाँ पे मोलैरिटी. मोलैरिटी में हमारे पास क्या, मोल्स ऑफ सोल्यूट. यहाँ मैं सोल्यूट ऐड कर रही हूँ NaCl. सपोज करो मैंने ऐड किए 2 मोल NaCl किया. तो अब मोलैरिटी हमारी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स इन 1000 ml. 100 ml हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा सोल्यूशन नहीं है. यहाँ याद रखना में क्या चाहिए, सोल्यूशन चाहिए. तो हमें एक्चुअल में इसमें सोल्यूट का वॉल्यूम भी ऐड करना पड़ेगा, तो जाके सोल्यूशन बनेगा. और फिर हम उससे क्या कैलकुलेट करेंगे, मोलैरिटी कैलकुलेट करेंगे 1000 ml में. तो ये दोनों टर्म्स में एक चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखना, ये सोल्यूशन में कैलकुलेट कर रहे हैं हम. परसेंटेज बाय मास भी और मोलैरिटी भी किस में कैलकुलेट कर रहे हैं, इन सोल्यूशन. मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी को डिनोट करते हैं बाय कैपिटल M, विच इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट. मास अपॉन मोलर मास याद रखना क्या होता है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, मोल्स. तो ये मोल्स हो गए सोल्यूट के, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन मिलीलीटर में. एक्चुअल में हमें वॉल्यूम किस में चाहिए, लीटर में. तो ये मिलीलीटर वाले वॉल्यूम को ही 1000 से जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1000 यहाँ आ जाता है. तो इस तरीके से ये वॉल्यूम हमारा क्या बन जाता है, 1 लीटर बन जाता है. तो मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ये हमारा फॉर्मूला हो गया मोलैरिटी का. नेक्स्ट टर्म आफ्टर मोलैरिटी इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज ग्राम इक्विवेलेंट्स पर लीटर. यहाँ से हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज नॉर्मेलिटी. नॉर्मेलिटी इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, किसके, सोल्यूट के, ऑफ सोल्यूट्स इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन. ये भी किस में है, इन सोल्यूशन 1 लीटर. नॉर्मेलिटी सिंबल इज कैपिटल N, which is equal to mass of solute upon equivalent mass of solute. मास अपॉन इक्वलेंट मास जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ग्राम इक्वलेंट्स के इक्वल होता है. ये देखो नंबर ऑफ ग्राम इक्वलेंट्स एंड सोल्यूट के. तो ग्राम इक्वलेंट लिखा हमने, ग्राम इक्वलेंट किसके इक्वल है, मास को किससे डिवाइड कर दो, इक्वलेंट मास से, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है, लेकिन किस में है, मिलीलीटर में. तभी हमने यहाँ पे 1000 यूज़ किया है. ये हमारे पास फॉर्मूला किसका आ गया, नॉर्मेलिटी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया.
लेकिन अब नाउ व्हाट इज इक्विवेलेंट मास? इक्विवेलेंट मास क्या होता है? किसी भी कंपोनेंट का इक्विवेलेंट मास होता है उसके मोलर मास को अगर हम डिवाइड कर दें एसिडिटी या बेसिसिटी से, देन इट चेंजेस टू इक्विवेलेंट मास, वो इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट हो जाता है। अब नाउ क्वेश्चन इज एसिडिटी क्या है और बेसिसिटी क्या होती है? एसिडिटी एंड बेसिसिटी। एसिडिटी इज ऑफ बेसिस और बेसिसिटी किसकी होती है? एसिड्स की होती है। बट व्हाट इज एसिडिटी? एसिडिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H plus ions in an acid, and basicity is number of replaceable OH minus ions in a base. For example, HCl and H2SO4 radium. One hydrogen ion is replaceable, so its acidity is 1. Two hydrogen ions are replaceable, so its acidity is 2. NaOH, one OH minus is replaceable, so basicity is 1 of this base, and calcium hydroxide, 2 hydroxyl ions are replaceable, so basicity of this base is 2. तो अगर हम मोलर मास को एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड कर देते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? इक्विवेलेंट मास में कन्वर्ट हो जाता है। आफ्टर दिस थर्ड टर्म नॉर्मेलिटी, नेक्स्ट टर्म हम करते हैं मोलैलिटी। फोर्थ टर्म हमारे पास आ जाती है मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंबल है स्मॉल m। अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस ध्यान से देखना। मोलैलिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इन 1 kg और 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो इस टर्म में मैंने क्या लिखा है? ऑफ सॉल्वेंट लिखा है। पहले वाली सारी टर्म से हम क्या लिख रहे थे? ऑफ सोल्यूशन। इसमें क्या आ रहा है? ऑफ सॉल्वेंट। इस तरीके से मोलैलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम मोलैरिटी। फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, नंबर ऑफ मोल्स है तो मोल्स के लिए क्या लिखना है? मास ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन, अब यहाँ पे क्या आएगा? मास ऑफ सॉल्वेंट आएगा। लेकिन किस में लेना है? ये ग्राम्स में। और 1 kg हमें चाहिए था डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ग्राम को हमने 1000 से डिवाइड किया जो यहाँ आ गया, और ये किस में कन्वर्ट हो गया? kg में कन्वर्ट हो गया। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द मोलैलिटी। मोलैलिटी के बाद नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का सिंबल है x। अब इट्स क्लियर फ्रॉम द नेम मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ विच थिंग वी हैव टू टेक? मोल्स की। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट, जिसकी मोल फ्रैक्शन हमने कैलकुलेट करनी है, ऑफ द कंपोनेंट बाय द टोटल नंबर ऑफ moles of all the components in a solution. Suppose there are two components in a solution A and B. A की मोल फ्रैक्शन को XA से लिखेंगे, B की मोल फ्रैक्शन को किससे लिखेंगे? XB से लिखेंगे। और इसके मोल्स को लिखा है Na, इसके मोल्स को हम लिख रहे हैं Nb से। अब व्हाट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ XA? XA ए कॉम्पोनेंट की मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल है? इसके मोल्स Na डिवाइडेड बाय सम ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कॉम्पोनेंट्स इन अ सोल्यूशन। सोल्यूशन में 2 कॉम्पोनेंट्स हैं, दोनों कॉम्पोनेंट्स के मोल्स के सम से इसको डिवाइड कर दो तो हमारे पास आ जाएगी मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कॉम्पोनेंट। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कॉम्पोनेंट किसके इक्वल है? इसके मोल्स upon sum of moles of all the components in a solution. Remember, the sum of the fraction is always equal to 1. Similarly, sum of mole fractions of components is also equal to 1. इनका sum किसके equal आता है? 1 के equal आता है। After mole fraction, next term है
मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन के लिए भी सिंबल इज एक्स ओनली, बट डिफरेंस ये है, ये मास का फ्रैक्शन है, वो हमारे पास किसका था, मोल का फ्रैक्शन था। अब इसमें दो कंपोनेंट अगेन ए लिया और बी लिया, इसका मास फ्रैक्शन एक्स ए, इसका मास फ्रैक्शन एक्स बी, ठीक है, इसका मास हम डब्ल्यू ए ले लेते हैं, इसका मास डब्ल्यू बी। सो व्हाट इज मास फ्रैक्शन ऑफ ए, इसका मास ए कंपोनेंट का अपॉन sum of masses of all the components in a solution WA plus WB. Similarly, XB किसके इक्वल आएगा, WB upon WA plus WB के, and sum of mass fractions is also equal to 1. इसके बाद है लास्ट टर्म हमारी है पार्ट्स पर मिलियन, abbreviated as ppm, parts per million. ये concentration term हम use करते हैं for very dilute solutions. This concentration term is used जब solutions हमारे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, dilute होते हैं. Definition is, it is mass of solute present in 1 million parts by mass of solution. मास में एक्सप्रेस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन को, लेकिन कितने पार्ट सल्यूट के, मिलियन पार्ट सल्यूशन में कितने हैं। तो अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल सल्यूट है ए, तो ए का पार्ट्स पर मिलियन किसके इक्वल है, इसका मास, मास ऑफ ए डिवाइड किससे करना है, मास ऑफ सॉल्यूशन से, लेकिन कितने पार्ट्स में कैलकुलेट करना है, मिलियन पार्ट्स में कैलकुलेट करना है। तो परसेंटेज की तरह ही है ये, परसेंटेज में यहाँ 100 पार्ट्स होते हैं और पार्ट्स पर मिलियन में यहाँ कितने होंगे, मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर पार्ट्स पर मिलियन। ये हमारी कुछ कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स थी टू एक्सप्रेस द सॉल्यूशंस को कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स में। इनके अलावा कुछ पॉइंट्स हमें याद करने हैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट, व्हेन फ्रॉम वन एसिड, एक ही एसिड है लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन को हमने चेंज कर दिया, सेम एसिड इन डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन इज प्रिपेयर्ड। हमने एक एसिड लिया, उसमें फॉर एग्जांपल हमने वाटर डाल दिया, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी। अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन आती है तो जो नया सोल्यूशन हमारे पास बना, उसकी फॉर एग्जांपल हमने मोलैरिटी निकालनी है, या हमने उसका वॉल्यूम निकालना है, या नॉर्मेलिटी निकालनी है, तो हम यूज़ करेंगे ये इक्वेशंस। इसको कहते हैं मोलैरिटी इक्वेशन, एंड दिस इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी इक्वेशन। ये एक सोल्यूशन का मोलैरिटी और वॉल्यूम, ये जब हमने उसकी कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया तो उसकी मोलैरिटी और उसका वॉल्यूम, सिमिलरली नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम। सेकंड, व्हेन टू वन एसिड another acid is added, यहाँ बेस में दूसरा बेस हमने ऐड किया, या एसिड में दूसरा कोई एसिड अगर हमने ऐड कर दिया, तो अब रिजल्टेंट जो सोल्यूशन बना है उसकी मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी अगर हमने कैलकुलेट करनी है तो हम यूज़ करेंगे M1V1 प्लस M2V2। ये जो पहला एसिड है उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम, ये दूसरा इसमें जो ऐड किया है उसकी मोलैरिटी और वॉल्यूम, मिक्स करके जो रिजल्टेंट सोल्यूशन बना उसकी मोलैरिटी M3, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली इफ नॉर्मेलिटी is used, तो N1V1 plus N2V2 is equal to N3 into V1 plus V2। ये इक्वेशन यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास आता है when to an acid
बेस इज एडेड और वाइस वर्सा, यहाँ बेस में हमने क्या ऐड कर दिया, एसिड। तो रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए स्टेप्स होंगे हमारे। पहला स्टेप है हमारा कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ टू सॉल्यूशंस। दोनों सॉल्यूशंस के क्या कैलकुलेट करो, सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करो। सेम ग्राम इक्विवेलेंट एक सॉल्यूशन के दूसरे सॉल्यूशन के को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो जो ज़्यादा अमाउंट में होएगा उसके ग्राम इक्विवेलेंट्स अनयूज्ड रह जाएंगे न्यूट्रलाइज करने के बाद। तो अब हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ग्राम इक्विवेलेंट्स अनयूज्ड जो रह गए, क्योंकि एसिड और बेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे। तो न्यूट्रलाइज करके एक हमारे पास सोल्यूशन होएगा जिसके ग्राम इक्विवेलेंट्स अनयूज्ड रह जाएंगे, वो हमने कैलकुलेट करने हैं। अब नेक्स्ट स्टेप इसके बाद आएगा, डिवाइड करो ग्राम इक्विवेलेंट्स अनयूज्ड को विद वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। बट किस में लेना है ये वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, लीटर्स में लेना है। जब हम ये डिवाइड करेंगे दिस विल गिव नॉर्मेलिटी ऑफ सोल्यूशन। जो सोल्यूशन बच गया उसकी क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी आ जाएगी। नॉर्मेलिटी आ गई। अगर हमने फॉर एग्जांपल मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो वी नो दिस फॉर्मूला, नॉर्मेलिटी किसके इक्वल होती है, मोलैरिटी इनटू एसिडिटी और बेसिसिटी। इस फॉर्मूले से वी कैन चेंज मोलैरिटी टू नॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी टू मोलैरिटी में चेंज कर सकते हैं। ये 3 पॉइंट्स हमने लिखे। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो दीज 3 पॉइंट्स दे विल हेल्प अस, और उसमें ये पॉइंट्स और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएंगे।